We will discuss the solutions of exercise 6.2. So the first question is maximize z is equal to 11x plus 8y and we are given three constraints. So let's start making the table. So first of all we'll convert it into intercept form. तो ये हो जाएगा x upon 6 plus y upon 6 is equal to 1. अब एक्चुअली इन दोनों के लिए हम कुछ कर नहीं सकते तो इसको हम ऐसे ही रखते हैं. मतलब इसमें हमें डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन ही बनाना है ना, तो वो बाद में ही देखेंगे डायरेक्टली. इसके इंटरसेप्ट क्या है, x इंटरसेप्ट 6 है और y इंटरसेप्ट भी 6 है. इसका साइन इज लेसर देन इक्वल टू, तो इसका रीजन क्या होगा, 0 प्लस 0 इज लेसर देन इक्वल टू 6. ट्रू है तो इट इज द ओरिजिन साइड. Okay, now after that for x is equal to 4 we'll skip these steps but we'll go to here this step. So this is lesser than equal to, for y is equal to 6 also it is lesser than equal to. तो इन दोनों के लिए भी if I put 0 is less than equal to 4 that is true and 0 is less than equal to 6 that is also true. So both of these are also origin side only. Okay. Now what we'll do is after this we'll start plotting. तो फर्स्ट लाइन बनाने के लिए हमको 6 और 6 प्लॉट करना है. सो दैट इज दिस पॉइंट हियर एंड हियर. मेक श्योर you have written x-axis, y-axis and the scale. Don't forget to write this. Okay, let's join these 2 points. So we get our first line. Okay, so I call this as 1. And the next line is x is equal to 4. X is equal to 4 is parallel to the y-axis at 4. Okay, so we draw this line. This is our line number 2. And next the third line is y is equal to lesser than equal to 6. So for that it is parallel to the x-axis. Okay. So this is our line number 3. So we can number the lines here also. This is 1, 2 and 3. Okay. Now let's start shading. Everything is towards the origin side. तो इसके लिए भी नीचे है, इसके लिए it is on the left side and here it is downwards and of course it is only in the first quadrant. So our region becomes C. So this part is cut off because of this first line, then this will also be cut off. So it is only this part that is our region. So I'll shade it now. Okay, now we'll just name all the points. So that this is O, I will call this as A, this is B and this is C. Okay, we have to find the value for B. A, O and C are obvious. So first of all the common region O, A, B, C is the feasible region. To find B we have to solve equation 2 and equation 1 because it is the intersection of these two. Equation 3 का कुछ काम नहीं है, तो we have to solve 1 and 2. So it is x plus y is equal to 6 and x is equal to 4. Therefore y is equal to 2. Right? इसमें substitute कर दो. तो b का क्या है coordinates 4, 2. You can check also it is right. Okay, now let's substitute all the values in the table. So 0, 0. Next a is 0, 6. Next b is 4, 2 and c is 4, 0. Okay, let's substitute. This is 0, x और y के बदले 0, 0 पुट करो, यहाँ पे 0, 6 पुट करेंगे तो we get 48. Next 44 plus 16 बराबर. So 44 plus 16 is equal to 60 and next this is 44. Okay, now we have to find the maximum value. Maximum value is
at this point here. Okay, so the maximum value of z is equal to 60 and it occurs at the point B 4, 2, that is when x is equal to 4 and y is equal to 2. Okay, I know that up till now all the sums that we have solved उसमें हमेशा b का ही आता है, पर ये necessary नहीं है. Okay, this is just a coincidence कि हर बार इधर ही आ रहा है. Okay, next question. So maximize z is equal to 4x plus 6y and we are given two constraints. Okay, let's convert into intercept form. So this becomes x upon 4, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 upon 12 ना, plus y upon 6 is equal to 1. यहाँ पे x upon 4 plus y upon 4 is equal to 1. इसके बाद intercepts x is 4 and y is 6. जो भी इनके नीचे वही लिखना है. X is 4 and y is 4. The sign is lesser than equal to the first for the first one and greater than equal to for the second one. Now let's check the region. First one में इधर 0,0 substitute करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 and 0 is lesser than equal to 12. ये true है, so this is origin side. Okay. For the next one, अगर इधर 0 and 0 put किया is greater than equal to 4. This is wrong. So this is non-origin side. Okay. Let's start plotting now. So first is 4 and 6. X axis पे 4, Y axis पे 6. इनको join करके first line बनाना है. हमेशा पहले points बनाओ फिर line बना दो एक, वरना कभी कभी गलत पॉइंट्स ज्वाइन हो जाते हैं मिस्टेक से. ओके, सो दिस इज लाइन नंबर 1 एंड नेक्स्ट 4 and 4. तो मैं इधर लिख देती हूँ 2 क्योंकि यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूजन होगा. तो मैं ये 1 भी हटा के आई विल राइट इट हियर. ओके, सो दैट सेपरेट दिखे ये. फाइन. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस स्केल लिख रहा है और ये ओ भी लिखा हुआ है. ठीक है, दोनों लाइंस बन गए. फर्स्ट लाइन इज ओरिजिन साइड, तो ये नीचे की तरफ है. ओके, सेकेंड लाइन इज नॉन ओरिजिन साइड, तो वो ऊपर की तरफ है. तो रीजन क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिटवीन दीज टू लाइन्स, दिस ट्राइंगल ओवर हियर. ओके, नाउ इसको नेम कर देते. सो दिस इज ए बी एंड सी. यहाँ पे हमको कोई भी पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब एक्सिस पे हमको पता है कहाँ है ये पॉइंट्स. सो द कॉमन शेडेड रीजन ए बी सी इज द फीजिबल रीजन. एंड वर्टाइसेस क्या क्या है? सो वी हैव ए विच इज 4,0, नेक्स्ट बी विच इज 0,6 and C which is 0,4, and we have to put these values in the value of Z. So when I substitute, it will become 16 plus 0 which is 16. Next 0 plus 36. Next is 0 and 24. Okay, so we have to maximize this. So we have to find the maximum value, that is 36. Okay, so the maximum value of Z is 36 and it occurs at the point B 0,6, where that is when x is equal to 0 and y is equal to 6. Okay, so maximize Z is equal to 7x plus 11y subject to 3x plus 5y is lesser than equal to 26. 5x plus 3y is lesser than equal to 30. x and y are both greater than equal to 0. ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हम अगर इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये इतना इजी नहीं होगा एक्चुअली, क्योंकि आप देख सकते हो कि 26 3 से डिविजिबल नहीं है, 26 5 से डिविजिबल नहीं है. तो हमको सब पॉइंट्स में आएंगे और उसको प्लॉट करना थोड़ा अनटाइडी हो सकता है. तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें कोई भी और टाइप के पॉइंट्स ले लेते हैं. ठीक है, नॉट नेसेसरली 0, समथिंग और समथिंग, 0.
तो पहली तो चीज है कि इसको ना थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो हमें आइडिया आएगा कि हम कौन से पॉइंट्स ले सकते हैं. ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इसको लिखती हूँ एज 3x इज इक्वल टू 26 माइनस 5y. ओके, तो अब ये y के बदले ऐसा क्या डालना चाहिए ताकि हमको ये जो पूरा टर्म है वो 3 से डिविजिबल मिले, ताकि हमको फुल होल नंबर आएगा. तो हमको पता है 3 से डिविजिबल 21 है, बराबर. तो अगर हम इधर 26 माइनस 5 करें तो हमको 21 आ जाएगा. तो y का वैल्यू क्या रखना चाहिए, 1. ओके, सो y का वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो अभी क्या मिलेगा, 26 माइनस 5 21 डिवाइडेड बाई 3, x का वैल्यू आएगा हमें 7. तो हमारा पहला पॉइंट है 7,1. ओके, अब दूसरे पॉइंट की सोचते हैं. तो अब मैं क्या करती हूँ कि हम इसी को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर लेते हैं. तो हम इसको चेंज कर देते हैं. एज वील राइट 5y इज इक्वल टू 26 माइनस 3x. मैंने बस अभी इसको इस साइड पे ले लिया, पहले मैं y को लिया था. अब हमको इस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ताकि जो भी इस साइड पे है वो 5 से डिविजिबल हो. ओके, अब अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो ये यहाँ पे कुछ आना चाहिए जो 0 से एंडिंग हो या 5 से एंडिंग हो. तो अगर मैं 20 बनाना चाहूँ तो ये 3 इंटू 2 अगर करूंगी तो ये 6 हो जाएगा. 26 माइनस 6 इस 20 आएगा. तो मैं x को 2 रखूंगी तो मुझे क्या आएगा, वैल्यू ऑफ y, it will be 20 upon 5 which is 4. So my second point is 2,4. Okay, so this is how we can obtain 2 points. Now next, the sign is lesser than equal to, therefore the region will be origin side. इसमें जब 0 और 0 पुट करेंगे it is lesser than equal to 26. Okay, now here इधर इट इज इजी टू यूज इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इसमें हम डायरेक्टली अगर x के बदले 0 रखते हैं तो y के बदले 10 आएगा. अगर y की जगह पे 0 रखते हैं तो वी गेट x इज इक्वल टू 6. सो आवर पॉइंट्स आर 0,10 एंड 6,0. तो तुमको इस तरीके से थोड़ा स्मार्ट होना है कि कब तुमको इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करना है, कब तुमको ऐसे यूज करना है. ठीक है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से. दिस इज ऑल्सो लेसर देन इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो ओरिजिन साइड. Okay, let's start plotting. So first point is 7,1. So इस पे 7 लेना है हमें और y पे 1, तो उसका इंटरसेक्शन इधर आता है, ये पॉइंट. ओके, हियर. नाउ नेक्स्ट 2,4. तो हम 2 पे ऐसे स्केल रखते हैं ताकि एकदम परफेक्ट बने. एंड 4 लाइज ऑन दिस लाइन, तो यहाँ पे. ओके, इन दोनों को ज्वाइन करके हमारी फर्स्ट लाइन बनेगी. ओके, नाउ नेक्स्ट 0,10 is here and 6,0 is over here. ओके, नाउ व्हाट इज इट, इट इज बोथ के लिए ओरिजिन साइड, तो दोनों के लिए नीचे की तरफ ही है. तो ये रीजन बिकम्स दिस पार्ट. ओके, now we have 4 points. One is O, A, B and C. Okay, अभी एक चीज है कि हमको A का वैल्यू भी नहीं पता और हमें B का वैल्यू भी नहीं पता, तो इन दोनों को ही ढूंढना है. तो पहले तो आर कॉमन रीजन इज O, A, B, C. फर्स्ट टू फाइंड A. A क्या है, जो लाइन 1 है वो कहाँ पे y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है. तो उसके लिए हमको क्या करना है, इट इज ऑफ द फॉर्म 0, समथिंग. तो हमको x के बदले 0 पुट करना है इन द फर्स्ट लाइन.
तो हमें y का जो भी वैल्यू मिलेगा वो a का वैल्यू होगा। तो उसके लिए 0 + 5y इज इक्वल टू 26। फर्स्ट इक्वेशन में x के बदले 0 रखा है, सो y इज इक्वल टू 26/5। तुम देखोगे थोड़ा सा 25/5 होता तो 5 होता, तो ये थोड़ा सा 5 के ऊपर ही है। तो द पॉइंट A क्या है, इट इज 0,26/5। ओके, नेक्स्ट टू फाइंड B क्या है, इन दो लाइंस का इंटरसेक्शन। तो हमें सॉल्व करना है 3x + 5y इज इक्वल टू 26 एंड 5x + 3y इज इक्वल टू 30। तो एक काम करते हैं, पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, 8x + 8y इज इक्वल टू 56। Therefore I can say that x + y is equal to 7. नेक्स्ट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट here, so -2x + 2y is equal to -4. So basically -x + y is equal to -2. Now इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, तो ये दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले, अब ये इजियर हो गया ना। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 5, है ना। x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2y इज इक्वल टू 5, सो y इज इक्वल टू 5/2। ओके, एंड व्हाट अबाउट x वाला पार्ट, x इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दो किधर भी यहाँ पे, तो इट इज -2 x इज इक्वल टू -2 - 5/2 which is equal to -9/2. So x is equal to मैं इधर लिख देती हूँ, x is equal to 9/2. तो हमारा पॉइंट क्या है, इट इज पॉइंट B. आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, गलती से जगह कम छूट गई है। तो 9/2, 5/2। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, 9/2 मतलब ये 4 और 5 के बीच में आना चाहिए, आ रहा है ना। यहाँ पे देखो B का, और 5/2 मतलब 2.5, तो इट शुड कम बिटवीन 2 and 3 exactly. Okay, now let's write all the points and substitute them in the objective function. The first O is 0,0, A is equal to 0,26/5. Next B is equal to 9/2, 5/2, and last C is equal to 6,0. Okay, let's substitute. First is 0, next is क्या, 26/5 into 11. 26/11 is 286 divided by 5. I hope तुम लोग को पता है इसका ट्रिक क्या है। When you have to multiply any number by 11, तब क्या करना है, सिंपली फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 26 into 11 करना था, तो तुम पहले 2 ऐसे लिखो, 6 यहाँ लिखो, बीच में इन दोनों को ऐड करके लिख दो। ओके, तो जो होगा वही आंसर है। उसके अलावा लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब ये 46 होता, तो ये 4 होता, ये 6 होता, और बीच में ऐड करने पे क्या मिलता है तुमको, 10। लेकिन यहाँ पे एक ही डिजिट हो सकता है, तो ये जो 1 है इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा, तो तुमको 506 मिलेगा। ओके, ये एक छोटा सा ट्रिक है, नॉर्मली भी करोगे तो चलेगा। दूसरे नंबर्स के साथ ट्राई करो, इट वर्क्स। ओके, यू हैव टू राइट द फर्स्ट डिजिट हियर, सेकंड डिजिट हियर, ऐड बोथ एंड राइट इन द मिडिल। अगर 2 डिजिट्स है तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ओके, इट वर्क्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ नंबर्स। इफ यू हैव 3 digit, 4 digit, it will always work. Now next, 7 into 9 is 63/2 plus 11 into 5 is 55/2. This becomes what? 118/2, which is equal to 5 and then 18 है तो 9. Okay, now next 6 into 7 is 56. अब हमें ये सारे वैल्यूज तो मिले हैं, इसका हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो मैं क्या कहूंगी, इसका रफली एक वैल्यू निकाल के रखते हैं। तो 28/5, 25 में ये 5 टाइम्स जाएगा, 3 रह जाएगा, 7 पॉइंट, फिर कितना होगा, 1 रहता है तो 2। ओके, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, एट द पॉइंट B. So the maximum value of Z is equal to 59 and it occurs at point B,
which is 9/2 comma 5/2, that is when x is equal to 9/2 and y is equal to 5/2. Okay, let's do the next question. Maximize z is equal to 10x plus 25y subject to x is lesser than equal to 3 and greater than equal to 0. टेक्स्ट बुक में मिसप्रिंट है, यहाँ 30 लिखा है बट वो एक्चुअली y के लिए है. 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेसर देन इक्वल टू 3 एंड x प्लस वाई इज लेसर देन इक्वल टू 5. तो इसके लिए हम इंटरसेप्ट फॉर्म में कर सकते हैं. ये दोनों तो स्ट्रेट लाइन्स ही होंगे पैरेलल टू x एंड y एक्सिस. ओके, इसके लिए इंटरसेप्ट फॉर्म इज x अपॉन 5 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1. So x intercept is 5 and y intercept is 5. The sign is lesser than equal to, region is origin side. Next, x is equal to 3 and y is equal to 3. इन दोनों का साइंस lesser than equal to ही है. ये दोनों भी origin side ही है. Okay, let's start drawing now. So first तो 5 and 5 वाला part. This is 1. Okay, next 3. And next यहाँ पे भी this is y is equal to 3. सबके लिए it is on origin side. तो क्या होगा कि इसके लिए भी इधर है लेफ्ट साइड पे, इसके लिए भी नीचे है और इसके लिए भी इस साइड पे ही है. नाउ सो द रीजन बिकम्स दिस पॉइंट ऑल्सो हैव टू इंक्लूड दिस पॉइंट. सी आई मीन इधर से ये पूरा कट हो गया, फिर ऊपर का पूरा कट हो गया, तो ये बॉक्स रह गया है. अभी इस बॉक्स में भी ये लाइन का इस साइड वाला कट हो गया है, तो इट इज दिस बॉक्स के अंदर भी ये ऐसे है. तो 1 2 3 4 एंड 5 पॉइंट्स. सो इनको नेम करते हैं. ये O, A, B, C and D. Okay, so the common shaded region O, A, B, C, D is the feasible region. Now we have to find B and C, but यहाँ पे काफी easy है. So to find B हमको क्या solve करना है? Let me number the lines. So this is let's say 1, 2 and 3. Okay, 1 2 and 3. Then when I am plotting it, ये slanting वाली line 1 है. Next this line is y is equal to 3, so this is the third line and this is the second line. Okay, now to solve B, to find B हमें कौन सी line solve करनी है? We have to solve 3 and 1. Okay, so 1 and 3 से हमें क्या मिलता है? 3 क्या है? y is equal to 3. 1 is x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और उसमें y इज इक्वल टू 3 पुट कर दो, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2. तो B पॉइंट क्या है? 2,3 बराबर. एंड टू फाइंड C वी हैव टू सॉल्व 1 एंड वी हैव टू सॉल्व 2. दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 3. So y का वैल्यू क्या आएगा? 2. So therefore C is equal to 3,2. बराबर. चलो अब सब पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो पहले O which is going to be 0,0. नेक्स्ट A which is 0,3. नेक्स्ट B is 2,3. C which is 3,2. and D which is 3,0. Okay, let's substitute this. तो इधर 0 आएगा. यहाँ पे 25 into 3 कितना है? 75. नेक्स्ट तो 10 into 2 20 प्लस 75 ये 95 आएगा. नेक्स्ट 3 into 10 30 प्लस 2 into 25 is 50. So this is 80. And lastly 3 into 10 which is 30.
मैक्सिमम कहाँ पे आया, हियर. Okay, so now the maximum value of z is equal to 95 and it is obtained at b 2, 3, that is when x is equal to 2 and y is equal to 3. Okay, so next question. Fifth one में maximize z is equal to 3x plus 5y and we have 3 constraints. We can change all of this into the intercept form. So let's do that. So this is x upon 24 plus y upon 6 is equal to 1, right? Next इसको x upon 21 upon 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 plus y upon 21 is equal to 1. Next x upon 9 plus y upon 9 is equal to 1. अब एक्चुअली अगर ये 7 नहीं होता ना तो सब कुछ डिविजिबल बाई 3 है, तो हम 3 वाला बना सकते थे. ठीक है, जब ग्राफ बना रहे हैं उसका बाद में डिस्कशन करेंगे वैसे भी. तो यहाँ पे ये x का इंटरसेप्ट 24 है, y 6 है, नेक्स्ट x is 7, y 21, यहाँ पे 9 एंड 9, तीनों का साइन लेसर देन इक्वल टू है. तो तीनों क्या है, मैं सबके लिए एक ही बार में लिख देती हूँ. एवरीथिंग इज ओरिजिन साइड. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग. So the first line is 26 and 24 and 6. Okay. Now you see इधर numbers बड़े बड़े हैं, तो यहाँ पे तुम अगर सिर्फ 111 का बनाते जाओगे 24 वाला फिट ही नहीं हो पाएगा. तो इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट्स लिया है. 1 सेंटीमीटर पे 2 बनाया है. ओके, 3 भी बना सकते हैं. ये सिर्फ 7 की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम था, बट उस पार्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं फिर. पर मैंने ऐसे 2 का ले लिया ताकि थोड़ा बड़ा भी बने. ओके, तो 24 एंड 6, 24 and 6. Let us join this. Equation number 1. Okay, next 7 and 21. So 7 is exactly between 6 and 8. I would suggest using a scale to do this also. तो ये 6 और 8 के बीच में exactly 0.5 वाला मार्क करो, एंड उधर 7 है, 7 and 21. तो इधर भी we will have to mark between 22 and 20. Okay, and then after that we will join this. सारी चीज़ें स्केल से करना बेटर है, तो यू आर श्योर कि तुम्हारा आंसर एकदम परफेक्ट है. वैसे तो इतना परफेक्ट नहीं होगा तो भी मतलब इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि तुमको फुल आने वाला है पेपर में, तो अगर मॉडरेटर के पास गया तो उसको एक बहाना मिल जाएगा तुम्हारे मार्क्स कट करने का. ओके, सो दैट इज वाई. नाउ नेक्स्ट 9 and 9. 9 is between 8 and 10. Okay, so we have got 3 lines. All are on origin side. ओके, नाउ हमें कौन सा पार्ट शेड करना पड़ेगा. पहले तो देखो ये वाली लाइन की वजह से ये वाला पूरा पार्ट खत्म हो गया, फिर ये वाली लाइन की वजह से ऊपर वाला पार्ट. तो अभी कितना बाकी है, लिटरली सिर्फ इतना और इतना. बट इस वाली लाइन की वजह से ये वाला पार्ट भी चला जा रहा है, तो इट इज ओनली दिस 5 वर्टेक्स वाला थिंग दैट इज रिमेनिंग. सो इट इज 1 2 3 4 and 5.
सो O, A, B, C एंड D. जहाँ पे ऐसा होता है वहाँ पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि कौन सा वर्टेक्स कौन से दो लाइन सॉल्व करके हमें मिलेगा. ओके, नाउ द शेडेड रीजन O, A, B, C, D इज द फीजिबल रीजन. नाउ हमें दो वर्टाइसेस ढूंढने हैं और यहाँ पे जगह कम लग रही है तो मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूंगी थोड़ा बहुत. ठीक है, तो पहले तो टू फाइंड B यू हैव टू यूज विच लाइन. ये इंटरसेक्शन ऑफ 1 के साथ और कौन सा लाइन हमें सॉल्व करना पड़ेगा? 3 पे है ना ये. ठीक है, उन दोनों को लिख देते हैं. सो x प्लस 4y इज इक्वल टू 24 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू 15. ओके, नाउ सो y इज इक्वल टू 5 एंड देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4. सो b क्या है? इट इज 4,5. ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव टू ऑल्सो फाइंड c. तो मैं इधर कर रही हूं. To find C, we have to solve 1. 1 use करना पड़ेगा? No, actually. We have to use this line which is 2 and then we have to use 3. So it is 2 and 3. 2 is 3x plus y is equal to 21 and 3 is x plus y is equal to 9. So this becomes 2x. subtract करने पे 2x is equal to 21 minus 9 will be 12. So x is equal to 6. Therefore y is equal to 3. तो c is equal to 6,3. एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमने सही ढूंढा है कि नहीं. फॉर b के लिए तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लियरली ये 4 पे ही आ रहा है. ओके, एंड यहाँ पे ये 6 और मतलब 4 और 6 के बीच में आ रहा है. तो दिस इज द करेक्ट 4 और 5. एंड नेक्स्ट फॉर C यहाँ पे ये 6 पे आ रहा है और ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है तो 3 पे है. ओके, नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वर्टाइसेस इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन. तो फर्स्ट इज O 0,0. नेक्स्ट इज A which is 0,6. नेक्स्ट इज B which is 4,5. C 6,3 and last D which is 7,0. Let us substitute everything. पहले वाले के लिए z is equal to 0. नेक्स्ट वाले के लिए z is equal to 6 into 5 which is 30. नेक्स्ट z is equal to 4 into 3 कितना होता है? 12 plus 5 into 5 is 25. तो इसका आंसर है 37. नेक्स्ट 6 into 3 is 18 plus 3 into 5 is 15. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 33. एंड लास्ट 7 into 3 is 21. Maximum again is at B. Okay, so the maximum value of Z is equal to 37 and it is obtained at B which is 4,5. Okay. Next question, sixth one. Here we are expected to find minimization of this function and we are given two inequations. इनको इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल देते हैं. तो फर्स्ट x upon 1 plus y upon 5 is equal to 1 and next x upon 3 plus y upon 3 is equal to 1. Now यहाँ पे x intercept is 1 and y intercept is 5. यहाँ पे it is 3 and it is also 3. The sign is both में greater than equal to. The region has to be 0 plus 0 is greater than equal to 5 is wrong. So it is going to be non-origin side for both. Okay, it is better कि तुम एक एक लाइन में लिखो तो दोनों के लिए लिखना चाहिए. मैं ऐसे ही अभी लिख रही हूँ. Okay. Now first is 1 and 5. So 1 and 5.
Okay, and next it is 3 and 3. Okay, दोनों के लिए it is on the non-origin side, right? So it is going to be like this. It is an unbounded region. ओके, तो उसके वर्टाइसेस क्या है? पहले तो ये एक है, ये दूसरा है एंड ये तीसरा है. ओके, इनको नेम कर देते हैं. सो लेट दिस बी ए, बी एंड सी. सो द कॉमन शेडेड रीजन A, B, C is the feasible region. We have to find B, which is intersection of 1 and 2, which is equal to 5x plus y is equal to 5 and x plus y is equal to 3. इसको सॉल्व करेंगे तो फिर we get 4x is equal to 2. So we get x is equal to half. इसको जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस हाफ मतलब 2.5 मतलब 5/2. ओके, ये दिख रहा है, ये बीच में और इधर भी बीच में है. ओके, सो b इज 1/2 5/2. नाउ लेट्स चेक कि कहाँ पे मिनिमम मिल रहा है. सो a इज इक्वल टू 0,5, b इज इक्वल टू 1/2 5/2 एंड c इज इक्वल टू 3,0. इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. इसका वैल्यू आया हमें 5, फिर इसका आया 7/2 प्लस 5/2 विच इज इक्वल टू 12/2 है ना. तो ये आया 6 एंड नेक्स्ट 3 into 7 is 21. The minimum value is 5. So the minimum value of z is equal to 5. यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमाइज था इसलिए हम सबसे छोटा ले रहे थे. अब तक के जो भी क्वेश्चन थे उसमें हमेशा मैक्सिमाइज था. एंड इट अकर्स एट a equal to 0,5, that is when x is equal to 0 and y is equal to 5. Okay, next question. Now here minimize z is equal to 8x plus 10y and we have 3 constraints. लास्ट वाला तो एक सिंपल लाइन है तो इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करते हैं. सो वी गेट x अपॉन 7/2 विच इज 3.5 प्लस y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1. सो x इंटरसेप्ट इज 7/2 एंड y इंटरसेप्ट इज 7. नेक्स्ट x अपॉन 15/2 प्लस y अपॉन 5 is equal to 1. X is 15/2 which is 7.5. Y is equal to 5. Y is equal to 2 तो ऐसे ही रहेगा. सबका साइन ग्रेटर देन इक्वल टू है. सबका क्या रहेगा? नॉन ओरिजिन साइड. ओके, लेट अस स्टार्ट ड्रॉइंग. 7/2 मतलब 3.5, 3 और 4 का जो है उसके बीच में one. Next is 15/2 and 5. So 15/2 is 7.5 which is here and 5 and last line is y is equal to 2, so which is like this parallel to x axis.
ओके, नाउ सबके लिए इट इज नॉन ओरिजिन साइड. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा रीजन हमारा, बेसिकली ये वाला पूरा. ओके, तो हमारे पॉइंट्स क्या है, ये वाला और ये वाला. ओके, सो वी हैव ए, बी and C as our points. Okay, and let us find B and C both. So first of all, the shaded region ABC is the feasible region. Now to find B, we will basically have to solve equation 1 and equation 2. So now in 1 and 2 it is 2x plus y is equal to 7 and 2x plus 3y is equal to 15. तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, we'll get minus 2y is equal to minus 8. तो y is equal to 4. तो x का वैल्यू क्या आएगा, इधर 4 रखेंगे तो हमें आएगा 7 minus 4 3. तो x is equal to 3/2. सो हमारा जो पॉइंट B है वो है 3/2, 4. चेक कर लेते हैं. तो ये 1 and 2 के बीच में ही आ रहा है एंड यहाँ पे 4 पे आ रहा है. ओके, नाउ नेक्स्ट C के लिए वी हैव टू सॉल्व इक्वेशन 3 एंड दिस इज 2. तो 2 and 3 के साथ काम करना है. तो 2 है 2x plus 3y is equal to 15 and 3 is that y is equal to 2. तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो. तो 2x plus 6 is equal to 15. तो 2x is equal to 9. So x is equal to 9/2. तो C क्या है, 9/2, 2. 4 और 5 के बीच में आना चाहिए और यहाँ पे 2 पे है. ओके, नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट एवरीथिंग. तो फर्स्ट A is equal to 0,7. नेक्स्ट B is equal to 3/2, 4 and next C is equal to 9/2, 2. Okay, we have to find minimum value. इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. फर्स्ट A पे 70, यहाँ पे 3/2 into 8. तो पहले तो वो 2 और 8 कट होके we will get 4. तो ये हो जाएगा 12 plus 40 which is equal to 52. नेक्स्ट 9/2 into 8, तो 4 into 9 which is 36 plus 20 which is equal to 56. तो हमें अपना मिनिमम वैल्यू कहाँ मिला है, B पे. द मिनिमम, मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, ये मिनिमम होना चाहिए. द मिनिमम वैल्यू ऑफ Z is equal to 52 and it occurs at B 3/2, 4. That is when x is equal to 3/2 and y is equal to 4. Okay, let's move on to the last question now. Minimize z is equal to 6x plus 2y and we have 3 constraints again. Let us convert everything into intercept form. X upon 3 plus y upon 3/2 is equal to 1. Next x upon 4 plus y upon 1 is equal to 1 and last x upon 1 plus y upon 3 is equal to 1. Intercepts are 3 and y is 3/2. X is equal to 4 and y is 1. X is 1 and y is equal to 3. Okay, साइन सबका greater than equal to है. So it is for everything it is non-origin side. Okay, now let's start plotting. तो यहाँ पे एक्चुअली क्योंकि इतना छोटा छोटा है सब कुछ, तो मैंने क्या किया है कि मैंने 4 तक ही बनाना था, तो मैंने 2 सेंटीमीटर्स को 1 यूनिट लिया है. ओके,
ओके, सो नाउ फर्स्ट लाइन बनाने के लिए वी नीड 3 एंड देन 3/2 विच इज 1.5 3/2 और यहाँ पे 3, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट वाला क्या है, 4 एंड 1, 4 यहाँ पे और 1 इधर पे. तो इसी तरीके से मतलब अगर आप रियलाइज करो कि बहुत छोटा बन रहा है तो इसको आप बड़ा भी बना सकते हैं इसके स्केल को. तो वो लिखना चाहिए लेकिन कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट. सो ये लाइन नंबर 2. नेक्स्ट 1 एंड 3, ये 1 और यहाँ पे ये 3. ओके, नाउ एवरीथिंग इज नॉन ओरिजिन साइड, सब कुछ ऊपर की तरफ है तो ये वाला रीजन होगा. ओके, अभी हमारे पास 1 2 3 एंड 4 पॉइंट्स है. नेम कर देते हैं सबको A B C एंड D. ओके, सो the common shaded region ABCD is the feasible region. We have to find B and C. Let us do that. So to find B, we have to solve equation 3 and equation 1 and 3. Okay, so that is x plus 2y is equal to 3 and 3x plus y is equal to 3. तो एक काम करते हैं, इस वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6. नाउ वी हैव टू सॉल्व ये वाला और ये वाला. तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा दैट 5x इज इक्वल टू 3. सो x इज इक्वल टू 3/5. ओके, नेक्स्ट इसको y में x की जगह पुट करेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा दैट 2y इज इक्वल टू 3 माइनस 3/5 विच इज 15 माइनस 3 मतलब 12/5. फिर 12/5 आएगा, उसको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा तो y इज इक्वल टू 6/5. तो जो हमारा b है वो हमें मिला है एज 3/5, 6/5. ओके, नेक्स्ट टू फाइंड c we have to solve this line 2 with 1. So here 1 is equal to x plus 2y is equal to 3 and next x plus 4y is equal to 4. सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिलेगा 2y is equal to 1. So y is equal to half. ओके, हाफ को पुट कर दो कहीं पे भी. तो मैं अगर इस वाले में पुट करूं तो ये x प्लस 2 इज इक्वल टू 4 आएगा. 4 माइनस 2 इज 2 तो x का वैल्यू 2 आ रहा है. चेक कर लेते हैं हमारा आंसर. ये 3/5 1 से कम नंबर होता है तो ये यहाँ पे आ रहा है और ये 6/5 जस्ट 1 से बड़ा है तो ये करेक्ट है. और यहाँ पे y हाफ है तो एग्जैक्टली आ भी रहा है इस पे एंड x का वैल्यू 2 है यहाँ पे. सो c इज इक्वल टू 2,5. Let us substitute everything now. So a is equal to 0,3, b is equal to 3/5, 6/5, c is equal to 2,5 and d is equal to 4,0. Now इसमें substitute करते हैं तो 3 into 2 6. Then 3 into 6 which is 18/5 plus 6 into 2 12/5 which is 30/5 which is also 6. Next 2.5 so 12 plus 1 which is equal to 13 and last यहाँ पे it is 24. Okay, now यहाँ पे ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें क्या मिला है, हमें 2 मिनिमम वैल्यूज मिले हैं.
this should be the minimum value of z is equal to 6 and it occurs at A and B. Okay, ये हम actually cancel कर देते हैं यहाँ पे. Now there is one thing that you need to realize that suppose ऐसा हुआ कि कभी भी हमको दो minimum values मिले, तो ये देखो ये A कहाँ पे है और ये B कहाँ पे है. यहाँ पे A है और यहाँ पे B है. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे एक्चुअली, अगर इस लाइन पे तुम कोई भी एक पॉइंट पे कैलकुलेट करो, ठीक है, तो यू विल ऑलवेज गेट द मिनिमम वैल्यू एज 6 ओनली. ओके, सी इफ यू ऑब्जर्व ये लाइन जो है यहाँ पे ये ए बी वाली मतलब लाइन 3, इट इज 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 3. एक्चुअली हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना वो इसका मल्टीपल ही है. इसको 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करो तो 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 आ रहा है ना, तो उसका डबल ही है, मतलब यही लाइन है. तो हम एक्चुअली बोलते हैं कि जब मिनिमम ऑफ वैल्यू इज अकर्स एट 2 पॉइंट्स तो हमको इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है. इट अकर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी. तब सारे जो पॉइंट्स है ए बी के बीच में, तो ये पूरा जो सेगमेंट है इन सब पे ही मिनिमम वैल्यू अकर करता है. इट अकर्स एट ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी, देयरफॉर इट हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. ओके, ये लिखना जरूरी है. तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि दो जगह पे आपको मिनिमम आया, ऐसा नहीं था कि अगर ये 6 6 और ये 5 होता ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 5 आपका मिनिमम होता, पर यहाँ पे आपको 6 पे मिनिमम मिला है तो फिर ये लिखना जरूरी है उसके बाद. ओके, विद दैट एक्सरसाइज 6.2 इज कंप्लीट.